Assalamualaikum, how are you all? I hope you are all fine. Today we learn the chapter The Musician of Bremen. This is the story of a donkey, a dog, a cat, and a cock. You can read the play and then act it in class. A donkey is walking down the road. It looks very sad. Donkey. Oh dear, I have worked on this farm all my life. Now must leave. My life is in danger. My owners say I am useless because I am old. I think I will go to Bremen and become a musician. The donkey leaves the farm. He meets a dog. Dog. Hello, old donkey. Where are you going? Donkey. To Bremen to become a musician. Dog. Can I come too? I am old and cannot work. My owner has driven me out. Donkey. Please come along with me. They walk on till they meet a cat. Cat. Hello, friends. Where are you going? Donkey. To Bremen. Dog. We are old and of no use anymore. We are running away. Our owners don't want us anymore. Cat. I am in great danger too. I am old and cannot. Now come to page 48. Catch any mice for my honor. Yesterday she said she was going to sail me. Donkey. Come along with us. Cat. Thank you, I shall. They walk on till they meet a cock sitting on a gate and crowing. Donkey. That's a fine noise. Cock. Yes, I am lucky I am alive. My owner was going to sail me. Dog. You sing very well. Join us and be a musician too. Cock. Certainly. The four friends walk along the road. It is getting dark, but they are still a long way from Bremen. Donkey. We cannot get to Bremen tonight. Dog. Let's sleep in this wood. Cat. Here is a big tree. I can sleep on a branch. Cock. And I can perch on the highest branch. Dog. And the donkey. And I can lie near the trunk. Cock. From the top of the tree. There is a light not far away. It's look like a house. Donkey. Hooray! Perhaps there will be some food there. Good dog. Let's go and see. They walk to the house and look through the window. Donkey. There are four robbers in the room. They are sitting round a table full of food. Dog. We must frighten them away. The dog stands on the donkey's back. The cat climbs on to the dog and the cock perches on the cat. Now come to page 49. They begin to sing loudly, then they all fall through the window. The frightened robbers run away. Robbers, run, run, before we are caught. The four friends eat the food on the table. Then the donkey lies down in the yard. The dog lies on a mat. The cat lies in front of the path and the cock perches on the beam. They are soon fast asleep. The robbers come back. One robber looks for a match to light the candle. Suddenly, the cat spits at him and scratches him. The robber trips over the dog. The dog bites him. Then the donkey kicks him and the cock starts to crow. The robber runs to join his friend. Robbers. What happened? What happened? Robber 1. There was a trouble which in the house she spat at me and scratches me. Then a man behind the door cut my leg with a knife. Then a monster hit me and the devil screamed at me. Robber. It is better to stay away from that house. The four musicians did not go to Bremen. They lived happily ever after in the house. एक डोंकी उदास रोड पर चलता हुआ खुद से बातें कर रहा था कि अब पूरी ज़िंदगी मैंने ये काम कर लिया है तो मुझे इस काम को छोड़कर चले जाना चाहिए यहाँ से। अब तो मेरे ऑनर को भी मैं यूज़लेस लगने लग गया हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ, तो मुझे ब्रेमेन जाके म्यूज़िशियन बन जाना चाहिए। ये सोचता हुआ अभी डंकी जा ही रहा था फार्म छोड़कर कि उसकी मुलाकात एक डॉग से हुई। डॉग ने उससे पूछा कि हे ओल्ड डंकी, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉग ने कहा, डंकी ने उसे बताया कि मैं ब्रेमेन जा रहा हूँ ताकि म्यूज़िशियन बन जाऊँ।
डॉग ने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे भी काम नहीं होता है और मैं भी अपने ऑनर को नकारा लगने लग गया हूँ। डोंकी ने कहा, हाँ बेशक तुम आ सकते हो। वो दोनों चलने लगे, जब तक चलते रहे जब तक उनकी मुलाकात एक कैट से नहीं हो गई। कैट ने उन्हें देखा और कहा, हेलो फ्रेंड्स, तुम सब कहाँ जा रहे हो? डोंकी ने बताया कि हम ब्रेमेन जा रहे हैं। डॉग ने कहा कि हम बूढ़े हो गए और हम किसी काम के भी नहीं हैं और हमारे ऑनर हमें अब रखना भी नहीं चाहते। कैट ने कहा, ओह ये तो बहुत अफसोस की बात है, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, अब चूहे भी नहीं पकड़ सकती हूँ अपने ऑनर के लिए, और वो आज मुझे बता रही थी कि वो मुझे सेल कर देंगी। तो डंकी ने कहा कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ। कैट ने उसका शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चल पड़ी। फिर उनकी मुलाकात एक कॉक से हुई जो गेट पर बैठकर राग गा रहा था। डंकी ने तो कहा कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है। कॉक ने कहा कि मैं बहुत लक्की हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरे ऑनर ने मुझे सेल कर दिया था। डॉग ने कहा, तुम अच्छा खासा गाते हो तो तुम भी साथ चलो और म्यूज़िशियन बन जाओ। कॉक ने कहा, सचमुच, और वो चारों चल पड़े रोड पर। रात काफ़ी हो चुकी थी क्योंकि ब्रेमेन जाने वाला रास्ता काफ़ी लंबा था। डंकी ने कहा, वी कैन नॉट गेट, हम आज की रात नहीं पहुंच पाएंगे ब्रेमेन। डॉग ने कहा, तो हमें यहाँ सो जाना चाहिए, मैं यहाँ लकड़ी पर सो जाता हूँ। कैट ने कहा, मैं इस दरख्त की शाख पर सो जाती हूँ। कॉक ने कहा, मैं भी इसकी सबसे ऊंची शाख पर चढ़कर सो जाती हूँ। कॉक ने कहा कि मुझे एक लाइट नज़र आ रही है जो ज़्यादा दूर नहीं है और ये मुझे लग रहा है कि ये घर है। डंकी ने कहा, हुर्रे, अब हमें यहाँ से कुछ खाने को भी मिल जाएगा। डॉग ने कहा, तो फिर हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए। अब वो सारे उस घर के पास गए और खिड़की से उन्होंने देखा। डंकी ने कहा, यहाँ 4 डाकू हैं इस कमरे में और वो सब टेबल पर बैठे हैं, जो टेबल खानों से भरी हुई है। डॉग ने कहा कि हमें इन्हें लाजमी तौर यहाँ से डरा के भगाना होगा। डॉग खड़ा हुआ डंकी के बैक पर, कैट छलांग मारकर डॉग पर खड़ी हुई और कॉक इनके ऊपर खड़ा हुआ। फिर वो लोग आहिस्ता आहिस्ता गाने लगे और अपनी आवाज़ लाउड करने लगे। मेरे डाकू खौफज़दा हो गए और कहने लगे, भागो भागो, इससे पहले हम पकड़े जाएं। चारों फ्रेंड्स में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक फ्रेंड बैठकर खाना खाता रहा। डंकी आंगन में जाके लेट गया, डॉग मैट पर लेट गया फर्श पर, और कैट बाहर जाने वाले रास्ते में लेट गई। डाकू जैसे ही कैंडल लेकर बाहर आने लगा, अचानक कैट ने उसे नोचना शुरू कर दिया, उस पर छलांग मारकर ने उस पर कट लगाए, उसे काटा। फिर डंकी ने इसे एक किक मारी और कॉक ने राग गाना शुरू किए। डाकू भागा भागा और अपने दोस्तों से जा मिला। सारे डाकुओं ने उससे पूछा कि क्या हुआ बताओ। तो उसने बताया कि एक चुड़ैल है इस घर में जिसने नोचा है। एक गेट के पीछे से एक आदमी आया जिसने मेरी लेग को काटा है। फिर एक मॉन्स्टर ने मुझे हिट किया और मुझे भूत की आवाज़ सुनाई दी है वहाँ से। सब रॉबर्स ने कहा, सब डाकुओं ने कहा कि इससे अच्छा है कि हम उस घर में रहें, कि हम यहीं पे रह लें। और जो 4 म्यूजिशियंस चले थे ब्रेमेन, वो फिर खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। I will be back with next new chapter. Fi Amanillah.